بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ادریس خان یوٹیوب چینل سے میں اور ادریس آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چند ایک پولیٹیکل سچویشن پر بات کریں گے۔ ادریس خان آج پھر عمران خان نے جمعے کا ٹائم دے دیا بھائی جان۔ جمعہ جو ہے وہ ویسے نون لیگ کے بھاری، اب تو پارٹی کے اوپر بھی بھاری ہونے لگا ہے نا۔ زرداری صاحب یہاں پر آئے ہوئے تھے، بڑے جناب چوڑے بن کے آئے تھے وہاں پہ سندھ میں، وہاں پر جو ڈاکو ہیں، جو داڑیل ہیں، صحیح ہے، وہ جو ہے پولیس والوں کو مار رہے تھے، بچوں کے ساتھ بدفعلی کر کے ان کی ویڈیوز لا رہے تھے۔ زرداری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سندھ کے لوگ جو ہے بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سیلاب میں ان کی کیا حالت ایسے ہی ہے۔ اور ان کے جو خیمے ہیں، ان کے جو خیمے تھے وہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جلسوں میں لگائے ہوئے تھے۔ صحیح ہے، ہاں، جو دین کا نام لیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، مگر ان کی پتہ نہیں کہاں پہ پرہیزگاری چلی گئی۔ جو بچارے جو باہر سے یار امداد ملی تھی، انہوں نے اپنے جلسوں میں لگا دی۔ بالکل، یہ تو میں سندھ کے اندر جب گیا تھا تو ادھر ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ جو ہے ان کی بڑی بری حالت تھی۔ ہم 4-5 دن وہاں پر رہے۔ ہاں جی، تو زرداری صاحب اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پنجاب میں کہ جی پنجاب کو فتح کر لیں گے، مگر ان کو نہیں پتا کہ یار سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جو ہے آپ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی جان وہ عدم جمعے تک تو وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، عدم اعتماد نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے، عدم اعتماد آ گیا، ٹھیک ہے، لوگ پورے کرنے، نون لیگ نے، پیپل پارٹی نے، پیپل پارٹی کے 2-3 سیٹیں، باقی تو رہ گئے باؤ جی۔ اب باؤ جی کا مسئلہ کیا ہے؟ باؤ جی کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جان اس نے آنا ہے واپس، ایسے ہی ہے۔ اس نے اپنے جو ابو جی ہیں نا، ان سے یہ شرط رکھی تھی کہ میں تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ اچھا، ہم مان لیتے ہیں کہ کاف لیگ کے 4-5 لوگ یہ توڑ لیں گے، ٹھیک ہے، یہ 5-6 لوگ جو ہے عمران خان صاحب کے توڑ لیں گے، پیسے دے دیں گے، ان سے ریزائن کروا لیں گے یا باہر وہ چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ عمران خان صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جی میرے 120 40 50 جتنے بھی لوگ ہیں وہ ریزائن کر دیں، اچھا، وہ استعفے دے دیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کیسے چلائیں گے؟ بحران ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے ان کو ہر طرح سے جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس ہر چال، وہ جو بھی چال کھیل رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا رہے۔ لیکن یہ بھی ہے نا کہ ادھر جو کاف لیگ ہے یا پرویز الہی ہے، مونس الہی ہے، وہ بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ وہ آج تصویروں سے سامنے نظر آ رہا ہے۔ سر وہ خوش نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ کاف لیگ 10 سیٹوں کی پارٹی، بڑے صوبے میں ان کو جو ہے وزارت اعلیٰ مل گئی، بالکل ایسا ہی ہے، پورا مال ان کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح سے اپنے علاقوں میں کام کروا رہے ہیں پرویز الہی صاحب، اور پرویز الہی صاحب نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ جی اگلے انتخابات میں آپ ہمیں کوئی 40 سیٹیں دیں۔ اچھا، اب اصل بات میں آپ کو بتانا چلوں کہ جو عمران خان صاحب ہے نا، وہ چاہ رہے ہیں کہ یار بس الیکشن ہونے دیں، کیونکہ اگلا الیکشن ویسے پی ٹی آئی کا ہے نا۔ خان صاحب نے کہنا ہے کہ بھائی بلے پہ لڑتے ہیں آپ الیکشن تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جائیں۔ لیکن بھائی جان یہ بتائیں کہ باؤ جی کی باتیں ہو رہی ہیں واپس آنے کی، ٹھیک ہے، رانا ثناءاللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم پارٹی کے اندر مشاورت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہماری مشاورت مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم نواز شریف کو بلا لیں گے۔ مسئلہ ڈاکٹر کا ہے یا پارٹی کی مشاورت کا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر بھائی جان مسئلہ ہے گیٹ نمبر 6-4 کا، اچھا، سارا مسئلہ وہاں سے۔ اصل ڈاکٹر پاکستان پنڈی میں موجود ہیں، جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے، جب تک وہ کہیں گے نہیں نا کہ بھائی جان آ جائیں، وہ نہیں آ سکتے۔ ابھی تک ان کو یقین دہانی نہیں ملی، ابھی تک مطلب ان کو یہاں سے کوئی اشارہ نہیں ملا کہ جناب آپ آ جائیں۔ سر دیکھیں اشارہ مل بھی جائے، فیصل عباس بھائی ان کو اشارہ دے دیا، ٹھیک ہے، وہ آ بھی جائیں، کیا کر لیں گے یار؟ پارٹی کے صدر ہیں وہ ایک نہیں، یار قائد ہیں بھائی جان، وہ میرے بھی قائد ہیں، آپ کے بھی قائد ہیں۔ میرے قائد تو نہیں ہے سر، سب کے قائد ہیں بھائی جان۔ یہ میٹرو آپ جو استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے کھابے بھائی جان کھائے ہوئے ہیں، وہ فلیٹس ہمارے وہاں پہ، آپ جب یو کے جائیں گے تو آپ وہیں پہ رہائش پذیر ہوں گے۔ نہیں، آپ کی وہاں پہ مہمان نوازی وہاں پہ کچھ اور صحافی ہوتے ہیں اور جن کو آج شاید نوازا بھی گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پر ان کو چیئرمین پی سی بی جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ نہیں، وہ کوششیں ہو رہی ہیں، وہ کوششیں ہو رہی ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو جا کر ادھر لندن کے فلیٹس میں رہتے ہیں۔ مگر اب ہو سکتا ہے کہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب کی طرف، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان حالات میں چیئرمین پی سی بی بنے۔ جو حالات ہیں اس حکومت کے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حکومت جو ہے چھوڑ دیں،
शहबाज शरीफ के ऊपर वो अक्सर तनकीद किया करते हैं, लेकिन आज तो उनके जोराने पे पहुंचे। जोर आने पे भाईजान हम खाबों पे हमेशा पहुंच जाते हैं, ये हमारा मसला है। जहाँ पे अच्छा खाना होगा हम वहीं पे आपको मिलेंगे। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि यार आप सारे सवाल मेरे से कर रहे हैं, आप करें जी, आप आपकी मुझे बारी है। ये बताएं कि भाईजान मरियम नवाज साहिबा, आपको क्या लगता है कि वो वापस आ जाएंगी इलेक्शन से पहले? यार इलेक्शन से पहले जहां तक है तो मसला ये है कि मरियम बीबी भी अब चाहती थी कि कुछ जिंदगी में सुकून आए, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, या फिर अब उन्होंने कुर्बानी का बकरा बना दिया है शहबाज शरीफ साहब को, ठीक है। नवाज शरीफ उधर बैठे हैं, मरियम उधर बैठी है, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ उन्हें कहें कि बीबी आप वापस चली जाएं। इलेक्शन से पहले ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर मुझे एक और चीज लगती है, क्या चीज? मुझे ये लग रहा है कि जो बाऊजी है ना, वो इस इंतजार में है कि जो उनको यकीन दहानी करा दी गई थी, जो उनको कसमें ज़बानें दी गई थी कि जी आपके आने से पहले इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे, आप अहल हो जाएंगे, जहांगीर तरीन साहब भी अहल हो जाएंगे, अच्छा, और उसके बाद जब ये पूरा यानी कि सेटल हो जाएगा ना मामला, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा को जो है ना लाया जाएगा। ठीक है। और मरियम नवाज साहिबा हो सकता है कि अगर नवाज शरीफ साहब का अगर जो ज़बान उनको दी गई थी, अगर वो डॉक्टर साहिबान मुकर जाते हैं, हाँ। अगर उनके पास वो जो है टैबलेट अगर उनको नहीं मिलती, क्योंकि नायाब हो जाती है ना, कि आपने ऐसे ही देखा है। था कोरोना के दिनों में पेनाडोल नहीं मिल रही थी, ऐसे ही है। हो सकता है कि वो दवाई ना मिले, वो फैक्ट्री बंद कर दे बनाना कुछ टाइम के लिए, हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही मुमकिन है ना, पाकिस्तान ऐसे ही में तो हर चीज मुमकिन है। ऐसे ही है। तो उसके बाद मरियम नवाज साहिबा जो है ना, वो बतौर वजारत उस्मा के लिए इलेक्शन लड़ेंगी। उनकी वो सारी जो है ठीक है, सारी बातें ठीक हैं। मुझे ये बताएं कि वो पहले जो अपना ये थे काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही हैं, जनरल बाजवा को बड़ा डिफेंड कर रहे थे, ठीक है, एक बात है, डिफेंड कर रहे थे। लेकिन खान साहब ने कहा, क्या किया खान साहब ने? कहा कि इधर आ जाए, मेरे साथ बैठ जाएं। आज ऐसा आपको नहीं लगता कि साथ बिठा के खान ने कुत्ते वाली कर दी है? नहीं, जो चौधरी बिरादरान है ना, वो बड़े खिलाड़ी हैं, खान अच्छा। साहब नहीं। खान साहब वो खान साहब से ऊपर के लेवल के हैं वो। ऊपर के लेवल के हैं। उसकी वजह है ना, खान साहब सच्चे आदमी हैं, अच्छा खरे आदमी हैं, उनको ये दो नंबरियां नहीं आती। अच्छा ये चौधरी बिरादरान पूरे दो नंबर हैं, अच्छा। इन्होंने हमेशा दो नंबरी से आए हैं। मुशर्रफ का दौर आप देख लें, उसके बाद अभी भी दो नंबरी से आए हैं ना, 10 सीटें हैं यार, ब्लैकमेल करके आए ऐसे ही है, हैं। बिल्कुल खान ऐसे साहब आ गए, खान साहब के पास ऑप्शन नहीं, खान ऐसे साहब ने भी कहा चलो ठीक है। उनकी जमात में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं ना, जो गेट नंबर 4, 5, 6 की पैदावार है, वहीं से मामलात लेते हैं। तो खान साहब भी ट्रैप तो हो जाते हैं, मासूम है। इतने मासूम है नहीं वैसे, जी, जितना नहीं आपको मासूम तो है नहीं यार। देखो इक़्तिदार जब उनके पास चला गया तो वो कहते हैं सब कुछ जनरल बाजवा साहब कर रहे थे। तो फिर इतने मासूम तो नहीं मासूम है तो ना? है नहीं यार, मासूम तो है ना। नहीं। देखें सारी चीजें हो गई हैं खान साहब से, हो सकता है कि अब उनको चीजों का पता चला है। हाँ, अब हो सकता है कि जब अगली बारी उनको मिलेगी तो हम देखेंगे कि खान साहब वही जो है चीजें दोहराते हैं या फिर कुछ बदलाव आता है, कोई तब्दीली आती है। लेकिन लगता नहीं है। देखें बात यह है कि जो जब इसका मामला था, पहले खान साहब कहते थे कि न्यूट्रल जानवर हैं, जानवर को कहते हैं, ठीक है। अब खान साहब कहते हैं कि जनाब मैं एस्टेब्लिशमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। तो अब एस्टेब्लिशमेंट कैसे न्यूट्रल हो सकती है भाईजान? लेकिन अब पीटीएम कह रही है कि न्यूट्रल ना हो। एक बात है ना, पीटीएम चाह तो रही है ना कि न्यूट्रल ना हो वो, लेकिन खान साहब पहले कहते थे कि न्यूट्रल जानवर है, आप कहते हैं फौज न्यूट्रल हो जाए। इसका मतलब क्या है भाईजान? इसका मतलब ये है कि जब तक वो खान साहब के साथ खड़े थे, जब तक वो खान साहब के साथ जो है उनके मामलात, जैसे आज सलीम साहब ने जो कॉलम लिखा है वो सारा इसी के ऊपर तो था कि किस तरह से जनरल बाजवा साहब ने खान साहब की मदद की है। अगर वो मदद अब दोबारा खान साहब को मिलना शुरू हो जाए, खान साहब खुश हैं, जो अभी पीडीएम को मिल ऐसे गए ही हैं। है। मगर एक और बात भी है, अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही मानों में न्यूट्रल हो जाए तो खान साहब को 2 ताई अक्सरियत लेने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही है। और खान साहब अगर आ जाए तो इनके साथ क्या होगा? बाजवा साहब के जो असासे हैं, जो बाजवा साहब ने एक बनाया तो है ना यार, 6 सालों में उन्होंने, देखिए हम गरीब से गरीब तर हो गए और हमारे जो जनरल हैं वो 12 अरब पता नहीं कितने अरब के उनके असासे बन गए हैं। उनकी बीवी रातों रात अमीर हो जाती है।
जो उनकी अपना दूसरी है अपना बहू, वो भी अमीर हो जाती है, उनके असासे भी जो है ना बढ़ जाते हैं। हमारे तो नहीं बढ़ते, आपके बढ़ते हैं तो बता दें यार। हमारे अगर बढ़ते होते तो हमारी ये पोजीशन ना होती। इस तरह की जो डिस्कशन है वो हम इस यूट्यूब चैनल पर जो है वो मुसलसल करते रहेंगे। सूरत हाल ये है कि मुल्क इस वक्त बहुत ही बहरान से गुजर रहा है। जैसा कि आपको पता है मईशत का जो बहरान है, 6 अरब डॉलर के ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं। थोड़ी अगर हम ये इकोनॉमी की इसके बात ऊपर आप करें, बताएं, जरा डिटेल में बताएं कि हम मुआशी तौर पे कहाँ पे खड़े हुए हैं। आज जो शौकत तरीन साहब ने कह दिया कि जी इन्होंने तो हमें जबरदस्ती निकाला था, ऐसे ही है। अब हम क्यों प्लान दें, हम क्यों आपको कोई चीज देखिए दें? बात यह है कि जब खान साहब की हुकूमत गई थी तो उसके बाद देखें जब भी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपका फ्यूचर होती है। बिल्कुल ठीक है, वो तो ऐसे दरवाजे पे खड़ी होती है। तो 6 अरब डॉलर के ज़खायर हमारे पास हैं, हमने 28 से 32 अच्छा, 6 जो आपके पास 6 अरब भी हैं, उसमें से तो 4-5 अरब तो बाहर के हैं, आपके पास तो एक मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही बात बता रहा हूँ। लेकिन हमें आप ये देखें कि अगले साल हमें 30 से 28 अरब डॉलर चाहिए, तो 6 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। एलसी खुल नहीं रही, अद्वियात के सैकड़ों की तादाद में कंटेनर पोर्ट पर खड़े हुए, अद्वियात खराब हो गई हैं, सब्जियां खराब हो गई हैं। ठीक है, वहां से जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे थे सारी खराब हो गई। आज हम एक देख रहे थे कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो उन्होंने उसको बंद कर दिया है कि क्योंकि ताजरों की एलसी नहीं खुल रही, कारखाने बंद हो गए, कारखाने बंद हो चुके हैं। मार्केटें बंद हो बिल्कुल गई। ऐसे ही है। यहाँ पे जितने जो बैरून ममालिक से बिल्कुल। लोग आए हुए थे, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके हाँ। रखी हुई थी, और सब वो कुछ हमारे खत्म सफारत करके खानों चले के गए। जितने भी मुलाजिमीन है, जितने भी अफसरान है, उनकी पेमेंट का बड़ा मसला है। उन्होंने तनख्वाहें खत बंद लिखा है भाईजान। कि 4 महीनों से जो है वो उनको तनख्वाह नहीं मिली, ये सूरत हाल है। तो अब हम आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि इस पर जो है वो क्या मजीद पेशरफ्त होती है। इस तरह की बैठक मगर आखिरी सवाल यार मेरा, बताएं। आपसे आखिरी सवाल मेरा, बताएं। मुझे ये बताएं कि एमक्यूएम बाप खालिद मंसी साहब की आपने तकरीर जो है कुछ दिन पहले आपने सुनी होगी पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि बाप बाप होता है। तो मुझे ये बताएं कि ये आखिर कब तक जो है अपने बाप से, असल बाप से रुखसती लेंगे और इस हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे? बयानबाजी तो ये रोज करते हैं, आप क्या समझते हैं? या कोई ऐसा होने जा रहा है? ऐसा होने जा रहा क्योंकि है, नया सेटअप आ गया, नए सेटअप बिल्कुल। ने अभी तक ये कहा हुआ है कि जी हाथ खड़े किए हुए हैं हाथ खड़े कि हमारी तरफ से कोई इशारा नहीं है हाँ किसी जी, को। मगर आजम सवाती साहब का जो मामला है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो इदारों के खिलाफ तो फिर इदरीस इस हद तक बोलना, फिर आपको कुछ ना कुछ पे तो करना पड़ता है। हाँ वो तो करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, वो इस तरह छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ भी नहीं सकते, अगर छोड़ दे तो फिर हर बंदा फिर आ जाए हाँ बाहर, जी। ये मामला है। लेकिन जहां तक दूसरी बात है तो अभी तक इस एस्टेब्लिशमेंट ने तो हाथ खड़े किए हुए हैं कि जनाब हमारी तरफ से कोई इशारा नहीं है। तो ये छोटे मोटे लोग बातें करते भी रहें तो कुछ नहीं होता। खान साहब ने जो गेम डाली हुई है उसका यही है कि आखिरी पता नहीं है। मैं अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था कि खान साहब का असम्बलियां तोड़ने का ये जो है ये आखिरी पता नहीं है। इसके बाद भाईजान खान साहब के पास बड़े प्लान है। खान साहब ऐसे लग रहा है कि वो जमान पार्क में बैठ के ना कोई चिल्ला काट रहे हैं, कोई जो है ना अपना उनसे उलूम लुदनिया, मुझे इतना आइडिया नहीं है इन चीजों का कि उनके ऊपर ना कुछ चीजें आ रही हैं, यानी कि वो इस तरह से नून लीग को परेशान करके रख दिया है, जो समझ नहीं आ रही कि उनके पास खान साहब के पास इतनी कहां जाए। सेनेटर जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब हैं उन्होंने भी पीपल्स पार्टी से जो है वो इस्तीफा दे दिया और वो अनकरीब आप तहरीक इंसाफ में देखेंगे। देखते हैं, ये तो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं। तीसरी मर्तबा इदरीस जो है वो हमें यहाँ पर काट चुके हैं। मैं यहाँ से आपको इजाजत लेने चाह रहा था, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।